بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمام ناظرین کو جی سپورٹس میں خوش آمدید۔ آج کا شو جو ہے ہمارا یہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے کیونکہ جنرلی تو ہم اسٹوڈیو میں اپنے مہمانوں کو بلاتے ہیں یا پھر لائیو ان سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آج کچھ وجوہات کی بنا پہ ہم جو آج شو کر رہے ہیں ہمارا فوکس ہے ہاکی کے اوپر، اور ہاکی کی پاکستان ہاکی ایک بڑی شخصیت ہے، ان سے ہم آج بات کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا ان سے کیونکہ ہم نے ٹائم لیا آج کا، تو ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ شو آپ دیکھیں گے جی سپورٹس میں پیر کے دن، لیکن ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری شہباز احمد سینئر سے۔ شہباز نے ریزائن کر دیا ہے ایز سیکرٹری، یہ جو پی ایچ ایف کی کانگریس میٹنگ ہوئی لاہور میں اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد کافی ریئیکشن آیا ہے، شہباز بھی کافی کچھ چیزوں پہ اپسیٹ تھے جو ہاکی کے حالات ہیں پاکستان میں، اور جنرلی ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی، لیکن ابھی حالیہ ورلڈ کپ میں جو پرفارمنس رہی ٹیم کی، ہم ایک میچ بھی نہیں جیت پائے اور کافی کچھ اس کے اوپر بات ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا کیوں نہ شہباز سے ہم ڈائریکٹ بات کر لیں کہ کیا ہوا ہے ہاکی میں، کیوں نہیں، کیونکہ شہباز نے سپٹمبر 2015 میں بریگیڈیئر خالد کھوکھر کے ساتھ پی ایچ ایف کی کمان سنبھالی تھی، تو 3 سال سے اوپر ہو گیا، تو کیا ہوا ان 3 سالوں میں اور کیا ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے اتنے فرسٹریٹ ہوئے ہیں شہباز احمد نے ریزائن کر دیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ شہباز احمد ہمارے ساتھ ہیں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ شہباز یہ کیا سلسلہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مطلب آپ نے بھی اب ریزائن کر دیا، آپ نے بھی اپنا ریزگنیشن دے دیا، تو کیا اس وقت مطلب کرنٹ سینیریو کیا ہے؟ کیا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوا آپ کا، نہیں ہوا، کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، جب 2015 میں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ٹیک اوور کیا تو پہلے 1-2 مہینوں میں ہی جو میں نے سٹاف دیکھا، ٹریننگ کیمپس میں جو لڑکے دیکھے، ان کا جو فزیکل فٹنس لیول تھا، میچ ٹیمپرامنٹ تھا، کانفیڈنس تھا، یا ان کی جو سکل تھی، اس کو آبزرو کرتے ہوئے میں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کنوے کیا تھا کہ ہماری ٹیم ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی میجر ٹائٹل جیت سکیں۔ میرا بڑا اس وقت مذاق بنایا گیا، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سیدھی اور سچی بات کریں تو لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوتی۔ اسی دن سے لوگ کہہ رہے تھے، جب میں ایز اے سیکرٹری یہ بیان دے رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم ابھی اتنی اہلیت نہیں رکھتی کہ جیتے گی، تو اس وقت ہی لوگ کہتے تھے کہ پھر آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب 3 سال پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ کام کر کے جو بھی بیسٹ پاسبل فیسیلیٹیشن میں ٹیم کو دے سکتا تھا، جس میں ہالینڈ کا آلٹمین کوچ آیا، آسٹریلیا کا فزیکل ٹرینر آیا، ہالینڈ کا فزیوتھراپسٹ آیا، تو یہ ساری سہولتیں دے کر بھی میں نے دیکھا کہ اگر ہم پراپر ریزلٹ اچیو نہیں کر رہے تو میں نے سوچا کہ مجھے کوئٹ کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے اس ملک کے لیے جو 18 سال محنت کی، ہسٹری کریٹ کی، ورلڈ چیمپئن بنا، حکومت پاکستان نے ہلال امتیاز کا ایوارڈ دیا، تو مجھے ایسا لگا کہ اگر میں مزید 3 سال کام کروں گا، ایک تو میں ریزلٹ بھی پروڈیوس نہیں کر سکتا اور دوسرا میرا اپنا نام بھی خراب ہوگا۔ شہباز دیکھیں، آپ ایز فار ایز آپ کی مطلب پاکستان ہاکی میں جو آپ کا ایک مقام ہے اور جو آپ کا ایز اے پلیئر کپتان جو آپ کی ایک پوزیشن ہے، وہ تو سب جانتے ہیں، مطلب ون آف دی ٹاپ نیمز آف پاکستان ہاکی، انفیکٹ ورلڈ ہاکی، اور 94 ورلڈ کپ آپ کی کپتانی میں پاکستان جیتا، اور بھی بڑے مطلب جو ہے ہم نے فتوحات حاصل کی، لیکن ایک سوال ضرور لوگوں کے ذہن میں ہے، کیونکہ آپ کے بہت سارے جو ہے فالوورز ہیں، فینز ہیں، جنہوں نے صرف آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ جو سارا سلسلہ ہوا پچھلے 3 سال میں، اس سے کیا یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایک گریٹ پلیئر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا، ابھی آپ میری جگہ بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر لگائیں اور جس طرح میں چلا رہا تھا چلاتا رہے، ہاکی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں میں 12-15 سال سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے لیے بھی ایڈمنسٹریشن کر رہا ہوں، میں 4 سال ہالینڈ رہا ہوں، 1 سال جرمنی رہا ہوں۔ جب میں نے اپنی ٹاسک سے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ میں یہ جس طرح سچویشن چل رہی ہے ریزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتا، تو میں سمجھتا ہوں میڈیا کو، اگر میڈیا کو عقل سمجھ ہو تو وہ یہ سوال مجھے کبھی بھی نہ کرے کہ میں 3 سال میں ٹارگٹ اچیو کیوں نہیں کر سکا، کیونکہ میری تو دیکھیں میری بات سنیں، جتنے ٹیکنوکریٹس ہیں، جتنے میڈیا کے لوگ ہیں آج بول رہے ہیں یہ باتیں، میں 3 سال پہلے سے بتا رہا ہوں۔ آپ کو آلٹمین کوچ چھوڑ کر کیوں چلا گیا یہ کسی کو بھی نہیں پتا، وہ کہتا ہے آپ کو جنریشنز چینج کرنی پڑیں گی، آپ ریئلسٹک باتیں کریں۔ جی بالکل، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کی، آپ دیکھیں انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی آپ کا نیشنل ہاکی سینٹر ہے،
कोई आपका अपना हॉस्टल शहबाज खाने की एक मेस सवाल है, देखें, as मैं for- ज़रूर आपसे यहाँ करूँगा कि आप मतलब जब खेलते थे, मैं तो बहुत कवर किया आपको, आप यू आर वेरी मतलब बहुत आप एक श्रूड और एक बहुत इंटेलिजेंट प्लेयर थे और कप्तान थे, आपको पता था क्या हालात थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर 3 साल पहले जब सेक्रेटरी के लिए कहा गया और आप आए सेक्रेटरी, तो जब आपको अंदाज़ा था कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान हॉकी में, तो देन व्हाई डिड यू पुट योर नेम एट स्टेक? मतलब आपका इतना बड़ा नाम था, आपने उसको क्यों स्टेक पे लगाया? नहीं, ये आपकी बात ठीक है। देखें, अब मुझे अच्छा लगता है चैलेंजेस एक्सेप्ट करना। ये शहबाज सीनियर पाकिस्तान हॉकी पाकिस्तान की वजह से ठीक। बना है। मैं इतना डरपोक आदमी नहीं हूं, लेकिन मेरा शोर मचाने का जरा वजह ये है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी हैं वो अपने कान खोलें। जैसा कि आईपीसी मिनिस्ट्री है, आईपीसी मिनिस्टर हैं, 4 महीने हो गए हैं, उनके पास 4 मिनट नहीं है कौमी खेल के लिए। आईपीसी के सेक्रेटरी हैं, उनको मैं 2 दफा मिला हूं। मैं हैरान हूं कि उनका विजन ही नहीं है, उनको स्पोर्ट्स की समझ बूझ ही नहीं है। हो सकता है वो बहुत ईमानदार हों, उनको मेडल भी देना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स चलाने के लिए डायनामिक आदमी चाहिए जो 1 मिनट में बात को अंडरस्टैंड करे। आप मुझे बताएं, मस्कत में पाकिस्तान की टीम गई हुई है, पूरी हुकूमत पाकिस्तान को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को पता है 40 लाख रुपया होटल का बिल देना है, और सारे सो रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे हंस रहे हैं, मीडिया भी शोर कर रहा है। जिनको जागना चाहिए, जिनको गैरत आनी चाहिए, वो लोग मतलब मैं तो ये आप इन ये कह रहे बातों हैं पे शहबाज की हैरान हूं। टीम वहां मौजूद थी और ये बिल देना था हमने वहां पर 40 लाख का? जी बिल्कुल। और फिर आप देखें, आईपीसी मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स कह रहे हैं कि आप टीम लेके क्यों गए। आप मुझे बताएं कि ये हमारा कौमी खेल है जिसमें हमने हिस्ट्री क्रिएट की है, जो साल के कैलेंडर इवेंट होते हैं, आप उनको रिफ्यूज नहीं कर सकते। मैं उनसे परसों मिला हूं, वो मुझे कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में इंडिया आपने टीम क्यों भेजी जब आपके पास फंड्स नहीं थे। तो इस बात का कोई मैं जवाब दे सकता हूं? अगर मैं एक नॉर्मल इंसान हूं तो मैं उनकी बात पे सिर्फ हंस सकता हूं, उनकी बात पे जवाब भी नहीं दे सकता। लेकिन शहबाज, ये जो अब जो टेन्योर, ना सिर्फ आप लोगों का टेन्योर, आपका और खोखर साहब का, उससे पहले भी जो मतलब राना मुजाहिद थे, आसिफ बाजवा था, ये कई सालों से हम देख रहे हैं कि हॉकी में ये मतलब फंड्स का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। मतलब हर वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को प्रॉब्लम फंड्स की रहती है कि मतलब फंड्स गवर्नमेंट से ही लेने पड़ते हैं, ग्रांट्स मांगने पड़ते हैं। तो क्या इसकी वजह क्या है? देखें, बात यह है कि ये जो हॉकी वाले ओलंपियंस हैं, ये एक दूसरे को बदनाम इतना करते हैं कि हॉकी का माहौल इन्होंने तबाह कर दिया है। इस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हमने जॉब सेंटर बनाया हुआ है। जिस बंदे को अकोमोडेट करते हैं वो 4 दिन के लिए तो खामोश होता है और बोलता भी नहीं है। जैसे ही वो फेडरेशन से अलहदा होता है वो शोर शुरू कर देता है। कई ऐसे भी लोग हैं जो पिछली फेडरेशनों में भी रहे, इस फेडरेशन से भी फायदा उठाते रहे। तो ये सिलसिला कोई अच्छी प्लानिंग के बाद मैं समझता हूँ बंद करना चाहिए, क्योंकि जितने भी पुराने पुराने बड़े नेम हैं उनको अल्लाह ने एक पहचान दी, उनको एक इज्जत दी। अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जब भी वो कैमरे के सामने बोलें, पाकिस्तान की आवाम को वो सच बताएं कि हॉकी के मसाइल क्या हैं। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से कभी हॉकी ठीक नहीं होगी। आज के आपके प्रोग्राम में मैं फिर आपको बताता चलूं कि आप पिछले 15 साल की फेडरेशनें देख लीजिएगा, कभी जिंदगी में भी मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। हमारा काम है कि हम कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव बात करें। हमें चाहिए कि पाकिस्तान को कैसे इज्जत मिलेगी, कौमी खेल का रिवाइवल कैसे होगा, जिसके लिए मैं समझता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर चाहिए, अगर 2-3 नहीं तो 1 हॉकी सेंटर ऐसा बनाया जाए जिसमें होलसम फैसिलिटी हो, जिसमें पूरा साल बच्चों के लिए खाने के लिए ऐसा मील्स हों कि जो क्वालिटी वाले हों, ताकि बच्चे जो हैं उनको अच्छा खाना नहीं मिलता। और मैं समझता हूं कि ये जो आजकल की कंपेटिटिव हॉकी है, इसमें अगर हम बच्चे को अच्छा खाना जिसकी रिक्वायरमेंट है दुनिया में वो नहीं मिलेगा तो हम ठीक नहीं होंगे। दूसरा, मैं आपके एक सवाल का और ये भी जवाब देता रहूं, आप इंडिया में देखें, कभी जिंदगी में देखें, कभी फंड्स का इशू आया, कभी किसी और मुल्क में फंड्स का इशू आया। एक्चुअली ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की नाअहली है, आईपीसी मिनिस्ट्री की नाअहली है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सफर कर रही है। लेकिन शहबाज, लोग क्रिटिक्स का मानना ये भी है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इतने साल होने के बाद भी अपने आप को प्रोफेशनल लाइंस पे ऑर्गेनाइज नहीं किया, कोई प्रॉपर मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं बनाया, कोशिश नहीं की कि स्पॉन्सरशिप हासिल की जाए, खुद फंड्स को जनरेट किया जाए। देखें, बात यह है कि
किसी भी स्पोर्ट्स में फंड्स जनरेट करने के लिए उसमें ग्लैमर का होना बहुत ज़रूरी है, उसकी कवरेज बहुत ज़रूरी है। स्पॉन्सर तब आएंगे जब उनको पता चलेगा कि उनको माइलेज मिल रहा है। हम देखें, मैं 3 साल में मैंने 30 लेटर पाकिस्तान टेलीविज़न को लिखे हैं, विमेन चैम्पियनशिप के हवाले से, सीनियर चैम्पियनशिप के हवाले से, ये जो अभी 2 हफ्ते पहले हॉकी सीरीज ओपन हुई उसके हवाले से कि इसकी कवरेज की जाए। जब पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल गेम को कवरेज करने के लिए तैयार नहीं है तो स्पॉन्सर इसमें लाखों करोड़ों रुपया कैसे खर्च करेंगे? मैंने आपको देखें, जब मैंने रिजाइन किया तो उस वक्त भी, आज आपके प्रोग्राम में भी बता रहा हूं, जब तक हुकूमत पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होकर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं करेगी और हॉकी अगर एज इट इज़ ही चलती रहेगी तो अगले 10 साल भी आप चैंपियन नहीं बन सकते। आज हम अगर राइट डायरेक्शन पे काम करेंगे तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हॉकी ठीक हो जाएगी। देखिए, आपके पास अगर हॉकी सेंटर्स होंगे उसमें अंडर 16 ट्रेंड हो रही होगी, अंडर 18 मुख्तलिफ टेस्ट जब ट्रेंड हो रहे होंगे तो आपके पास बैकअप होगा, फॉलोअप होगा। इस तरह काम नहीं चल सकता ये 40-50 लड़कों में। मैं अभी भुवनेश्वर में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग अटेंड करके आया, जब मैंने लोगों को बताया है कि हमारे पास मुश्किल से 200-300 प्लेयर रह गए पूरे पाकिस्तान में, तो वो हम पे हंसने लग गए हैं कि वो मुल्क जो रूल करता रहा है दुनिया में हॉकी पे, उनका हाल ये है। तो मैं समझता हूँ ये नाकस पॉलिसियों की वजह है। शबद, एक चीज़ बड़ी वो है कि अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले इलेक्शन है हमारे वहाँ, और जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के, वो खुद एक साबिक कप्तान है क्रिकेट के। वर्ल्ड कप खुद उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने जीता। इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद से क्या आपकी खोखर साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई? आपने कोशिश नहीं की उनसे मुलाकात करने की? कोई उनसे तबादला ख्याल हुआ हॉकी के मामलात के ऊपर? नहीं, देखें, इसमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेड खोखर ने रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को 2 महीने पहले। उनकी मसरूफियात हैं कि उन्होंने मीटिंग नहीं की अभी तक उनसे। लेकिन मैं ये कहूँगा क्रिकेट के चेयरमैन से तो कोई 4 दफा वो मीटिंग कर चुके हैं मसरूफियात के बावजूद। देखें, बात यह है कि इमरान खान, ठीक है, मैं भी उनको आइडियलाइज करता हूँ, डायनामिक आदमी हैं, उनको भी टाइम देना चाहिए। और जो जिन लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया है, जैसे स्पोर्ट्स की मिनिस्टर हैं या आईपीसी मिनिस्ट्री है, इनको हमारी बात आगे पहुंचानी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे हिपोक्रेसी हो रही है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर ओहदे से जरूरी इस मुल्क की इज्जत है। मैं भुवनेश्वर में होके आया हूँ, वर्ल्ड कप देखा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग अटेंड की। मैंने जो जिस तरह की हॉकी खेली है, मैं बहुत अनईजी वहां से वापस आया हूँ। मैं लोगों के जवाबात देकर, सवाल सुनकर हैरान हुआ हूँ। मैं सबसे ज्यादा जो एक सवाल है जिसने मुझे शर्मिंदा किया, एक ओमान की टीम का ऑफिशियल आया हुआ था, उसने मुझसे पूछा कि ये पाकिस्तान की नंबर 1 टीम है जो यहाँ खेलने आई थी। तो मैं इस बात का जवाब नहीं दे सका। आप देखें, 3 साल से हम बेहतर टीम बना रहे हैं। किसी जगह पे ये नहीं आया कि शहबाज सीनियर ने कैंप में गलत लड़के रखा दिए, टीम में गलत लड़के रखा दिए, या मैनेजर कोच की गलती से टीम आ रही, या लड़कों की गलती से टीम आ रही। 3 साल में जब भी टीम हारती है, शहबाज सीनियर बुरा है। शहबाज सीनियर ने हॉकी को तबाह कर दिया, और शहबाज सीनियर जो है उसको मुल्क से निकाल देना चाहिए, तो पाकिस्तान की लेकिन शहबाज, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये भी तो है कि जैसे अगर हम देखते हैं पिछले साल से अगर हम लगाना शुरू करते हैं हिसाब, तो जितनी जल्दी इस पीएचएफ मैनेजमेंट ने टीम मैनेजमेंट को चेंज किया, मतलब हनीफ खान थे तो ख्वाजा जुनैद थे, फिर वो हटे, फिर फरत खान आए, फिर वो हटे, फिर ऑल्टमेंट्स आए, फिर रेहान भट्ट और कैसे बोलते हैं सकलैन को लाया गया, फिर अब तौकीर डार आ गए। तो ये भी तो एक फैक्टर काउंट करता है ना शहबाज, कि इतने जल्दी जब आप टीम मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, उनको प्रॉपर टर्म ही नहीं देंगे काम करने का, तो फिर वो कैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है? देखें, इस सवाल के 2 जवाब हैं। एक तो जब मैंने टेक ओवर किया था तो पहले ही 2 या 3 महीनों में मैंने मीडिया को बता दिया था, अगर 20 ओलंपियन भी मैं इस टीम के साथ कोच लगाऊं तो ये रिजल्ट प्रोड्यूस अभी नहीं कर सकते। हमें बहुत ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। ये एक का जवाब। दूसरा जवाब, जब हनीफ खान, ख्वाजा जुनैद को लगाया गया तो उनके पास पाकिस्तान की टीम 1.5 साल तक रही है। फरत खान जो है वो एक इवेंट में गए हैं, हमने फील किया है कि उनको पहली दफा लगाया गया था, उनमें अभी एक्सपीरियंस नहीं है टीम मैनेजमेंट का। उसके बाद जब हमने हसन सरदार, रेहान भट्ट को लगाया तो उन लोगों की डिमांड पर हम ऑल्टमैन को लेके आए। आप देखें कि हम तो हर वक्त कोशिश करते हैं। ठीक है शहबाज, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी, और इस वक्त हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और बातचीत हमारी हो रही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज अहमद, जो कि अब इस्तीफ़ा दे चुके हैं। जब ऑर्डमेंट्स आया तो बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, आप लोग ने फिर ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनर भी मंगवाया और फिर गोल कीपिंग कोचेस भी आए हॉलैंड से, और बड़ा एक फ़ील आई कि मतलब हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो उसके बाद एक फ़ील आई कि अब ऑर्डमेंट्स आ गया तो कुछ बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन फिर पता चला कि जी ये पैसों का मसला हुआ और ऑर्डमेंट्स को पैसे नहीं मिल रहे, प्लेयर्स को पैसे नहीं मिल रहे, और वो यकायक एकदम से छोड़ के वो चला गया। तो ये क्या सिलसिला था क्या ऑर्डमेंट्स का? देखें, बात यह है कि जो पैसों के हवाले से अनसर्टेनिटी थी उसका तो गोरे को खुद भी पता है, आपको लड़कों का भी पता है कि जब भी डेली अलाउंसेस खुद ही मीडिया को भी टेक्स्ट कर रहे होते हैं कि खबर चला दो कि डेली अलाउंसेस नहीं मिले। जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती से हट के बात होती। ठीक है, आज देखें, मैं 18 साल खेला हूं, अगर मुझे उस 18 सालों में 2 साल भी डेलियां नहीं मिली होंगी, जो नाम आज अल्लाह ने मुझे दे दिया, जो पहचान आज मुझे अल्लाह ने दे दी, मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जहां तक ऑल्टमैन के हवाले से है तो उसका ये है कि जब उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई एशियन गेम्स में, वहां उसने रियलाइज किया। फिर उससे मेरी जब टेलीफोनिकली बात हुई तो उसने कहा कि ये जो आपकी टीम है, ये मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर अगले 5 साल भी फिजिकल फिटनेस का लेवल ये आ जाएगा, क्योंकि ये लड़के 8-8 साल 9-9 साल से ऑलरेडी पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। आपको टीन एज लड़कों पे उनकी डाइट को लुक आफ्टर करते हुए पावर ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और ये योजो वगैरह का इस्तेमाल और वो जो जीपीएस सिस्टम है इसके मुताबिक ट्रेंड होंगे तो तब इनकी फिटनेस कंपेटिटिव हो सकती है। वरना इनकी जो स्किल है आजकल की एस्ट्रोट्रा में वो रिक्वायर्ड नहीं है। हॉकी बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। तो मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं शहबाज कि ही लॉस्ट होप आफ्टर अ वाइल, मतलब 2-3 टूर्नामेंट्स के बाद उसको रियलाइज हो गया कि ये टीम नहीं खड़ी हो सकती। बिल्कुल, जो मेरी जजमेंट पहले थी वही उसकी जजमेंट थी। मैं तो अपने जो कोचेज हैं मेरी उनसे बड़ी दफा बहस हुई। हमारे बहुत सारे ओलंपियंस हैं जिन्होंने मुझे कहा जब मैं सेक्रेटरी था, हमें टीम दे दें, हम टीम को खड़ी कर देते हैं, हमें टीम दे दें, हम खड़ी कर दें। ऐसा नहीं होगा। आपको अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21 पे काम करना पड़ेगा, और वो भी साइंटिफिक बेसिस पे। वो भी उसमें भी हम दोस्तों को नहीं रख सकते, लोगों को ओब्लाइज नहीं कर सकते, लोगों की जुबानें नहीं बंद कर सकते। लेकिन शहबाज ये जो ओब्लाइज करने वाला सिनेरियो है, अब मतलब आप 3 साल रहे तो आपने क्यों नहीं इसको ब्रेक करने की कोशिश की? ये जो एक विशिष्ट सर्कल है कि जो क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको कहीं अकोमोडेट कर दो या उसके फला दोस्त को अकोमोडेट कर दो, मतलब ये आपने क्यों नहीं इस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश की? आपने क्यों नहीं कहा कि नहीं यार मैं मेरिट पे फैसला करूंगा सिर्फ? देखें आप, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ख्वाजा जुनैद भी आपको पता है FIH के कोच थे, जिनके साथ हनीफ खान थे, बड़े थे, उनको लगाया गया। उनसे हमने फील किया कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। इसी तरह फरद खान को भी प्रेसिडेंट साहब की विश थी कि उनको सिलेक्शन कमेटी में देखा और कहते रहे जब ये खेलता था तो फरद खान में बहुत फाइटिंग स्पिरिट थी, हो सकता है ये टीम को लड़ाए। मैंने किसी भी जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं की। जो भी अल्लाह ताला ने अक्ल समझ दी उसके मुताबिक मुल्क के लिए बेहतर करने की कोशिश की, क्योंकि अब मेरा टाइम है कि मैं किसी भी शेप में पाकिस्तान को अब रिटर्न करना चाहता हूं और करना भी चाहिए। लेकिन इसीलिए मैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं करूंगा जिससे मेरा भी नाम खराब हो और मुल्क का भी खराब हो, क्योंकि जब मैं खेलता था उस वक्त भी आपको पता है मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी सेल्फिश हॉकी नहीं खेली। आज भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं यही चाहता हूं कि पाकिस्तान की हॉकी और पाकिस्तान के खेल जो हैं वो फ्लोरिश हों। लेकिन शहबाज, जैसे फॉर एग्जांपल एक फीलिंग थी कि हसन सरदार को जब लाया गया, पहले उनको चीफ सेक्रेटरी लाया गया, फिर उनको एकदम से मतलब मैनेजर कोच बनाया गया, उस वक्त भी एक फीलिंग ये आई कि वी आर गोइंग बैक टू मच इनटू टाइम, क्योंकि हसन उस पीरियड से बिलोंग करते थे जिस वक्त की अब हॉकी ख़त्म हो चुकी है। और साथ में आपने रेहान बट सकलैन को लगाया। सकलैन, रेहान बट यंगस्टर्स थे, मतलब कंपैरेटिवली मतलब न्यू जनरेशन से ताल्लुक़ था, इंथुजियास्टिक भी थे। लेकिन टूर्नामेंट में हम जा रहे हैं, वहाँ पर टूर्नामेंट के दौरान झगड़ा हो रहा है और सकलैन को वापस बुलाया जा रहा है, तो ये क्या इन चीज़ों का असरात नहीं आया हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे? वो मतलब क्या इससे फ़र्क नहीं पड़ा टीम की परफॉर्मेंस को? बिल्कुल भाई, 100% पड़ा है। आप देखें कि हसन सरदार एक ऐसे प्लेयर गुजरे हैं जो मेरे लिए भी रोल मॉडल हैं, मैं जिनसे इंस्पायर हुआ। उनको लगाने का मकसद सिर्फ यही था कि टीम को मोटिवेट करें और बच्चे उनसे मिलकर देखकर बात करके खुशी महसूस करें। एज ए मोटिवेटर उनको लगाया गया था। जी। और उन्होंने डे 1 से हमें उन्होंने यही रेकमेंड किया कि मुझे यंग मॉडर्न कोच दें पाकिस्तान के, जो लर्न कर सकें और उनके साथ कोई फॉरेन कोच होना चाहिए। और उनकी स्ट्रांग रिकमेंडेशन पे ऑल्टमैन को लगाया। जहां तक इस इंसिडेंट का ताल्लुक है,
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت برا تھا. یہ پاکستان کی ٹیم کے لیے نقصان دہ ہوا, ہمارے امیج کے لیے نقصان دہ ہوا ہے, ہاکی کمیونٹی کے لیے نقصان دہ ہوا ہے. ہوا کیا تھا شہباز, مطلب کیا ایسا ہوا؟ کیونکہ سکلین جیسے بھی تھا, اتنا میں نے بھی کیمپ میں دیکھا کہ وہ بہرحال اس کی انتھوزیازم تھا, اس کا ایک تھا کہ وہ مطلب ایفرٹ تو کرتا تھا. تو ایسا کیا اس نے کر دیا وہاں پر کہ اتنا آپ لوگوں کو ڈراسٹک سٹیپ اٹھانا پڑا کہ آپ لوگوں کو واپس بلانا پڑ گیا وہاں سے ٹورنامنٹ کے دوران؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی ٹیم کا مینیجر یا ہیڈ کوچ ہوتا ہے, اس کی جب ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ کسی پلیئر کو بلائیں, وہ انڈسپلن ہے, کسی بھی اسسٹنٹ آفیشل کو واپس بھیجیں جو ٹیم کے ماحول کو خراب کر رہا ہے, تو ہم نے اس کو سننا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر وہی پاکستان ہاکی فیڈریشن ہوتی ہے, وہیں پہ وہ آئی پی سی منسٹری ہوتی ہے, اور وہاں پہ وہ پورا پاکستان ہوتا ہے, وہی پاکستان کا فیس ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں تو فوری طور پر اس کو آنر کرنا ہے. ٹھیک ہے شہباز, کیا یہ صحیح بات ہے؟ کیونکہ یہ بہت ساری یہ باتیں مطلب آتی تھی باہر, جو آئی جو رومرز بھی چلے, وہ یہ بھی چلا ہے کہ بہت سارے فیصلے جو تھے جو لیے گئے لاسٹ 2-3 ایئرز میں, اس میں آپ اور کھوکھر صاحب ایک پیج پہ نہیں تھے. آپ کی سوچ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی, کھوکھر صاحب کی سوچ ڈیفرنٹ تھی. کیا ان 3 سالوں میں آپ کے اور کھوکھر صاحب کے درمیان کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوئی کسی چیز کے اوپر, یا یو آلویز آن دا سیم پیج ان ایوری ڈیسیشن؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیگیٹو خبروں کے لیے بہت ساری مخصوص لابی ہاکی میں ہر وقت ایکٹیویٹ رہتی ہے. میں تو جیسے ہی خبر پڑھتا ہوں مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسی لابی کا کام ہے. بریگیڈیئر کھوکھر سے میرے ایک بڑا فیملی ریلیشن, فرینڈلی ریلیشن ہے, جو عہدوں سے بڑھ کر ہے. مجھے ہاکی میں رہنا پڑے, ہاکی چھوڑنی پڑے, میں ان سے ریلیشن نہیں چھوڑ سکتا. دیکھیں اوپینین ہماری کئی دفعہ چینج ہوئی ہے, ان کی کوئی اور, میری کوئی اور, لیکن بعد میں کنسنسس پہ ہی فیصلہ کرتے رہے ہم لوگ. ٹھیک. شہباز مجھے یہ بتائیں کہ مطلب جو فارمر اولمپئنس کا ہم رول دیکھتے ہیں, آپ نے شروع میں جیسے کہا کہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب نقصان پہنچا ہے امیج کو پاکستان ہاکی کو, اور سپانسرز کا خاص کر کے جہاں تک سپانسرشپ کا تعلق ہے اس پہ بہت فرق پڑا ہے. یہ فیکٹ ہے بالکل, اس لیے کیونکہ جب ہر دوسرا تیسرا اولمپئن, آج کل نوید عالم بہت جو ہے وہ مطلب ایکٹیو ہے, جب فارمر اولمپئنس اس قسم کی باتیں کریں گے کہ جی فائنینشیل مس اپروپریشن ہوئی ہے, مس مینجمنٹ ہوئی ہے, پیسہ کھایا گیا ہے, کرپشن ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو آبویس سی بات ہے پھر اسپانسر تو بھاگے گا, پھر وہ کہے گا کہ بھائی میں کیوں پیسہ دوں, یا ایون گورنمنٹ بھی گھبرائے گی. تو یہ سلسلہ پچھلے 4-5 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہاکی میں چلا رہا ہے. اب یہ جو نوید عالم الزامات پھر سے لگا رہے ہیں, تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سلسلہ 5 سال سے آ رہا ہے. جب میں جدہ پوسٹڈ تھا وہاں بھی میرے نوٹس میں یہ بات آئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, ہمارے جو فارمر اولمپئنز ہیں جو کوئی نہ کوئی سلاٹ چاہتے ہیں مینجمنٹ میں یا ایڈمنسٹریشن میں, انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا ہوا ہے کہ فیڈریشن میں کرپشن ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کہ پی ٹی آئی کی یا اس پارٹی کی توجہ ان کی طرف آئی. یہ اپنے گریبان میں جھانک نہیں رہے. شہباز سینئر, آپ کو میں نے جیسا کہ پہلے بتایا, میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ کون چوری کرتا پکڑا گیا, کس نے معافی نامہ دیا, کس نے روم میٹ کے پیسے نکال لیے, کس نے کون کون سی انوائسز دیں, کس کی کون کون سی فائل بنی پڑی ہے, کن کے اوپر ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں. دیکھیں میں جو آپ کے ساتھ بول رہا ہوں یہ پوری دنیا میں میسج جاتا ہے. جو لوگ ہیں وہ ہمیں ورشپ کرتے ہیں کسی جگہ پر, ہمیں اپنی اوقات میں رہ کے بولنا چاہیے. ہمیں قومی کھیل کو, ملک کو بدنام نہیں کرنا. کسی بھی کرسی کے حصول کے لیے ہمیں گھٹیا حرکتوں پہ کبھی نہیں آنا چاہیے. اگر کرپشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے آئی پی سی منسٹری بیٹھی ہے, گورنمنٹ آڈٹ بیٹھا ہے, فرانسک آڈٹ بیٹھا ہے. جب وہ آ جائے گا, جب ان کا فیصلہ ہوئی بھی ہے شہباز, ہمارا اسپیشل آڈٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا ہے. ابھی ہمارا مہینے 2 مہینے میں فرانسک آڈٹ ہوگا. جب وہ آڈٹ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف دور بیٹھے نہ بولیں, وہ ڈول لے کے تو پورے ملک کا بھی دورہ کریں, لیکن ملک کو, ہاکی کو, قومی کھیل کو ایک دوسرے کو بدنام نہ کریں. یہ کافی, کیونکہ آج کل جیسے میں نے کہا نوید عالم بہت سرگرم ہے کہ جی اتنا پیسہ اڑا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. تو کیا اس کا توڑ کیا ہے مطلب شہباز, کیا مطلب یہ جو لوگ ایلیگیشن لگاتے ہیں؟ نوید عالم کے سوال کا میں آپ کو جواب دے دوں. دیکھیں انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہاکی کی پروموشن کے لیے اپنی جیب سے 1.25 کروڑ روپیہ بھی خرچ کیا. ٹھیک ہے.
तो इतने सिंसियर लोग दूर बैठे हैं, इसीलिए तो आपको पता है हमारी हॉकी को नुकसान हो रहा है। मैंने इसीलिए क्विट किया कि जितने भी लोग पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, कौमी खेल से प्यार करने वाले हैं, उन सबको इकट्ठा करें और इंशाल्लाह हॉकी को बेहतर करें। मैं अगर हॉकी को डैमेज कर रहा हूं तो मैं बाहर बैठा हूं, साइड पे बैठा हूं, मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा और उनका पूरा मौका दे रहा हूं कि मुल्क की इज्जत की खातिर और हॉकी की खातिर मिलजुल कर काम करें। लेकिन शहबाज, जो आप जैसे आपने ऑल्टमेंट्स का भी बताया और आपने खुद अपनी असेसमेंट भी दे दी, अब मुझे बताएं कि इतनी ब्लीक पिक्चर जब आप बता रहे हैं पाकिस्तान हॉकी की, तो आगे क्या, मतलब किस तरह, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड, मतलब अब करना क्या चाहिए? क्योंकि क्या वही कोई ओलंपियन आके सेक्रेटरी बन जाएगा? देखो मैं आपको बता रहा हूं, अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है आपका, पिछले हफ्ते उनको लेटर लिखा था कि प्रो हॉकी लीग हो रही है, हमें उसके लिए कैंप लगाना है, हॉकी स्टेडियम चाहिए, हॉस्टल चाहिए। आज 4 दिन हो गए हैं, उसका जवाब नहीं आया। और ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड किस लिए बना हुआ है अगर उसने कौमी खेल को लुक आफ्टर नहीं करना? जब हमने एशियन गेम्स के लिए उनको लेटर लिखा कि हम एशियन गेम्स के लिए इस्लामाबाद में कैंप लगाना चाहते हैं, यहाँ की एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, वेदर बड़ा अच्छा है, तो उन्होंने कहा जी हमारे तो हॉस्टल में जगह ही नहीं है कौमी खेल के लिए, यहाँ उसका ट्रेनिंग कैंप ना लगाएं। मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने खेल को लुक आफ्टर करना है, जिन्होंने फंड्स देने हैं, अकोमोडेशन देनी है, खाना देना है, वो लोग कुछ कर नहीं रहे और हॉकी फेडरेशन हो रही है। आप मुझे बताएं, अभी स्क्वाश है, ये आपके जहांगीर खान 10 साल ब्रिटिश ओपन के चैंपियन रहे हैं, जहांगीर खान वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, इनको कहें आपको 5-5 साल के लिए ये स्क्वाश फेडरेशन दे देते हैं, दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन होके दिखा दें, क्या हो जाएंगे? फिर उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? मैं कहता हूँ रियलिटी से हटके बातें करते हैं, मैं हैरान होता हूँ। इसीलिए मुझे कितने मीडिया वाले कहते हैं आप बीपर पे नहीं आते, आप इंटरव्यू नहीं देते। भाई स्टूपिड बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास दिमाग नहीं है। अगर मैं इन बातों का जवाब देता तो आज मैं क्या वर्ल्ड बेस्ट होता? मैं इस मुल्क के लिए हिस्ट्री क्रिएट करता। मैं जो सेंटेनियल ओलंपिक गेम्स हुई हैं उसमें ओलंपिक टॉर्च लेके भागता पेरिस में, या FIH मुझे स्विट्जरलैंड बुलाती दुनिया का बेस्ट प्लेयर करार देने के लिए। 10 साल हर टूर्नामेंट में वर्ल्ड बेस्ट हो रहा हूं, 2 वर्ल्ड कप बताएं कि ये जैसे आपने खुद कहा कि आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि जो कौमी खेल होने के बावजूद ये हाल है, लेकिन जो 3 साल आप लोग का टेन्योर गुजरा, फंडिंग तो ठीक ठाक आप लोग को मिली शहबाज, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी, मतलब ग्रांट्स आए, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी आए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की तरफ से भी आए, फिर आपने स्पॉन्सरशिप से भी कुछ अपने फंड्स खुद रेज किए, तो ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल ही हॉकी के लिए पैसा नहीं था? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। देखें 3 साल आप देखें कि कितनी एक्टिविटीज हुई हैं। हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज पे जरा नजर डालें। इंटरनेशनल आपके पास लोग कहते हैं जी डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं हुआ, लोग कहते हैं जी वो नेशनल जूनियर चैंपियनशिप ही नहीं हुई 3 साल से। नहीं, देखें मेरी बात सुने, पिछले साल नेशनल चैंपियनशिप हुई है, लोग गलत बोल रहे हैं। आप मुझे बताएं निशाने हैदर टूर्नामेंट जो कराची में हुआ, कितना बड़ा इवेंट था। इंटरनेशनल 11 आई, वो कितना बड़ा इवेंट था। हॉल ऑफ फेम कितना बड़ा इवेंट था। अभी मैं 2-3 नेशनल चैंपियनशिपें एक ही साल में करा देता हूँ, उससे अचीव क्या होगा? ये तो सिर्फ बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं, अभी 20 करोड़ दोबारा फेडरेशन को दे दें, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जो चीजें करने वाली हैं उन पे तवज्जो दी जाए। एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जहां बच्चा लुक को एकेडमिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लुक आफ्टर करे, उसको स्पोर्ट्स गियर दे, 15,000 का जूता, 15,000 की हॉकी उस बच्चे को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे। क्योंकि हमारी जो यूथ है वो हॉकी की बात ना सुनना चाहती है, ना करना चाहती है, ना हॉकी खेलना चाहती है। लेकिन जो भी चंद पैशनेट बच्चे रूरल एरियाज में पड़े हुए हैं उनको उठाकर किसी ऐसी जगह लेके आया जाए जहां वो मेंटली ग्रूम हो, वो पॉलिश हो। अभी मैं कहता हूं 20 अकेडमी है, लोगों को क्या बना लें, पेशावर में बना लें, कराची में बना लें, कसूर में बना लें। हाँ, क्या होगा? वो एक सर्टन लेवल पे आके रुक जाएंगे। वी आर अवे फ्रॉम रियलिटी। उनको लाकर इस तरह पॉलिश किया जाए, उनको पता चले कि वर्ल्ड लेवल पे जाकर वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनना है। हमारी तो बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि हम बताएं कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है शहबाज, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी और इस वक्त हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे।
वेलकम बैक शहबाज, मैं आपसे वैसे ये जानना चाहूँगा, देखिए जब हम 94 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप जीते और इवन उसके बाद हम 2010 में एशियन गेम्स भी जीते, मतलब वी वर विनिंग टाइम। आप जब खेल रहे थे हमारी टीम बड़ी टॉप लेवल की टीम थी। आई रिमेंबर 92 बार्सिलोना ओलंपिक्स, वी वर फेवरेट्स, टाइटल फेवरेट्स। तो उस वक्त भी तो कोई हमारा इतना बड़ा नेटवर्क तो था नहीं ना शहबाज हॉकी का। हाँ ये ज़रूर था कि अगर आज 25 लड़के खेल रहे हैं तो उस वक्त शायद मतलब 200 लड़के खेलते थे, लेकिन उस वक्त भी फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे पास, उस वक्त भी कोई हॉकी ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। वहीद उस वक्त क्या था, देखें अगर हम 90 वर्ल्ड कप खेले लाहौर में तो हम होस्ट कर रहे थे, एक स्पिरिट थी, एक जज्बा था। अभी जो बच्चे हैं, अगर आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करते, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं करते, कोई बड़ा इवेंट आपके मुल्क में नहीं हो रहा, बच्चों को अच्छी हॉकी देखने का मौका नहीं मिल रहा, वो अच्छी हॉकी कैसे खेलेंगे? आखिरी जो लॉट हमारी थी 1994 वाली, हमने कलीमुल्लाह को देखा, हमने मंजूर जूनियर को देखा, हमने हसन सरदार को देखा। आज का लड़का किसको देख रहा है, किसको देखकर वो हॉकी सीखेगा? रोल मॉडल्स नहीं है, कोई रोल मॉडल्स नहीं है। आप देखिए मेरी बात सुनिए, यूरोप में फुटबॉल में इतने अच्छे लोग क्यों हैं? जब वो इतना अच्छा फुटबॉल देखते हैं तो वो वही काम करने की कोशिश करते हैं। हॉकी को हमने पैटर्नाइज नहीं किया। जो पुरानी गवर्नमेंटें थी, स्पोर्ट्स उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। क्रिकेट में आप जो टॉप के 100 प्लेयर है ना, उनको कहें आज आप रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, कल दोबारा आप क्रिकेट की टीम बना सकते हैं। आपके पास इतना स्टफ है कि किसी को मौका भी नहीं मिल रहा होगा, मैं समझता हूं। अभी मैं कराची में, सिंध में आके ओपन हॉकी के ट्रायल कराता हूं। आप अपने चैनल को वहां लेकर आए, शायद 50 बंदे आ जाएं, 100 आ जाएं, और उनमें अगर 2 भी क्वालिटी के प्लेयर आ गए ना, तो आप बताइएगा शहबाज सीनियर साहब, आपका हॉकी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप आइंदा हॉकी की कोई बात नहीं। लेकिन शहबाज पिछले 3 सालों में मतलब कितनी ग्रांट्स, तकरीबन कोई 1 अरब के करीब मिला आप लोग को, पीएचएफ को? मेरे ख्याल में 70-80 करोड़ मिला होगा आप, लेकिन उसमें आप टूर्स देख लें, बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता रहा हूं, इट्स नॉट दी रेमेडी। आप 1 अरब रुपया दोबारा हॉकी फेडरेशन को दे दें। मैं सिर्फ ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि लोग कह रहे हैं, मतलब लोग असल में काफी लोगों को परेशानी ये है कि वो जो पैसे आप लोगों को मिले उसमें से कहीं आप लोगों ने कुछ पैसे से रख तो नहीं दिए। मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे, मतलब वो सारे खर्चे हो गए ना मतलब टूर्स के ऊपर। नहीं, नेचुरली बात ये है, देखें ये एक अमानत होती है। आपको मैंने बताया, हमने पुरानी फेडरेशन के भी पैसे दिए, अभी बच्चों से पूछे बगैर ऑनलाइन उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हमारे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। हम किसी के पास कोई प्लानिंग है, कोई प्रोग्राम है जिसने आज तक किसी ने चैनल को दिया हो, सवाए इस शोर के जी फाइनेंशियल बगलिंग हो गई। आप मुझे बता दें 3 साल में इस शोर के अलावा, और मैं वो शोर सुनता हूं और मैं हंसता रहता हूं कि इसी काम में लगे रहें। अब मैं जद्दा में पीआई की नौकरी करके आया हूं, 4 साल हो गए हैं। उस पे भी आपके एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने क्या फरमाया कि 2 मिलियन रियाल खा के आ गए, और 2 मिलियन रियाल जैसे 2 रुपए होते हैं। तो मतलब ये घटिया लोग हैं, इनकी बातों का जवाब देना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है और फिर शहबाज सीनियर का प्रोग्राम में आना पूरी दुनिया देखती है, हॉकी के बच्चे देखते हैं, क्योंकि आजकल के चंद बच्चे जो हैं उनके लिए मैं रोल मॉडल हूं। तो मैं समझता हूं कि इनको चाहिए कि बिहेव। यू फील शहबाज के जो हमारे फॉर्मर ओलंपियंस है उनका वो कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं रहा है जैसे होना चाहिए था? एक्चुअली वो अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं है, क्योंकि देखें जिस तालीम के साथ उनको अल्लाह ने अच्छी नौकरियां दी, इज्जत दी, इस मुल्क के अंदर उनका नाम है, उनको चाहिए कि अल्लाह के शुक्रगुजार हूँ। हर वक्त प्रोडक्टिव बात करें, कंस्ट्रक्टिव बात करें, जिससे मुल्क को, हॉकी को फ़ायदा हो। अपनी ख्वाहिशात का इजहार ना करें। देखें अगर शहबाज सीनियर दुनिया में सबसे अच्छा प्लेयर बन गया तो इसको डाइजेस्ट कर लें। उस वक्त उनके पास मौका नहीं होता था बड़ास निकालने का, आज वो बड़ास निकालना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला उनको हासिल कुछ नहीं होना, क्योंकि रिज़्क इज्जत सब परवरदिगार की देन है। नहीं, तो सही कहना शहबाज आप। लेकिन अब शहबाज मतलब जो हालात हैं वो हमने देख लिया। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होता है, कौन सेक्रेटरी बनता है, क्या होता है, किस तरह सिलसिला चलता है। लेकिन खोखर साहब पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि भाई खोखर साहब क्यों अब तक बैठे हैं, उनको भी रिज़ाइन करना चाहिए। तो खोखर साहब को क्या मतलब व्हाट्स हिज, कोई आपकी उनसे कोई बात हुई? देखिए बात ये है कि मैं आपसे भी ये पूछता हूँ, और जो बाकी लोग भी इतनी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं उनसे भी सवाल करना चाहूँगा कि अब 13वें नंबर की टीम है रैंकिंग में, दुनिया में 13वें नंबर की टीम है, तो क्या हम वर्ल्ड चैंपियन होकर वापस आते हैं? हमें कहाँ जीतना चाहिए आप मुझे बताएं। आप 13वें से 12वें नंबर पे आ गए हैं, मतलब हम तो बिल्कुल एक मैच भी नहीं जीत पाए।
नहीं वो आपकी बात ठीक है, एक मैच नहीं जीत पाए, मैं एग्री करता हूँ, इनको मलेशिया का मैच जीतना चाहिए था, लेकिन मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूं कि जब 20-20 साल खेले हुए हॉकी प्लेयर कहता है इबरतनाक शिकस्त। आप अपनी रैंकिंग देख लें, रियलिटी के हवाले से बात करें कि हम हॉकी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर ब्रिगेडियर खोकर को हटा के कल को आप ओलंपिक चैंपियन हो जाएंगे तो मैं समझता हूं जरूर कर लेना चाहिए। तो रियलिटी से ना हटें, जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट और इश्यूज आपका कहना ये है कि द गवर्नमेंट नीड्स टू पे प्रॉपर अटेंशन टू हॉकी, मतलब एक नेशनल हॉकी सेंटर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रहूं ना रहूं, उनको चाहिए कि 2-3 कोशिश करें सारे सूबों में एक एक्सीलेंस एकेडमीज बने जहां बच्चा जो है लुक आफ्टर हो। लेकिन शहबाज, अगर हम एक्सीलेंस एकेडमी बनाते भी हैं तो उसमें तो वही लोग आएंगे ना जो कि मतलब बेसिकली दे आर जस्ट लुकिंग फॉर जॉब्स और दे आर जस्ट लुकिंग फॉर पोजीशंस। मतलब हम वो नहीं उसमें देखो वहीद, उसमें मेरी सजेशन यही होगी कि जो भी लोग डेवलपमेंट लेवल पे यूरोप में जिनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जैसे हॉलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आप एक एकेडमी में हॉलैंड का यंग बंदा लाएं डेवलपमेंट लेवल का, जिसको आप अफोर्ड भी कर सकें। इसी तरह एक पेशावर में, जैसे देखें अभी केपीके में और पंजाब में 2 जगहों पे ज्यादा हॉकी रह गई है। बलोचिस्तान और सिंध में हॉकी जो है वो बहुत कम हो गई है। तो अगर इन सूबों को भी मौका दिया जाए और डिफरेंट कंट्रीज के 4 डेवलपमेंट के बंदे ऐसे आ जाएं जो नीचे पूरे सिस्टम को ठीक करें, जो हमारा 40 साल से बोगस सिस्टम क्लब्स का चला आ रहा है, कांग्रेस चली आ रही है, इन सारी चीजों को बेहतर करें। सबको एक जगह बिठाएं, उनको कहें आए भी सब मिलके बैठें, अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ें और एक अच्छा सिस्टम दें। उसमें जो भी इलेक्ट होता है उसको यस्सर करें और आगे काम शुरू करें। और शबाद, हमारे अब करंट प्लेयर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मतलब आपने खुद इतनी क्योंकि हॉकी खेली है, क्या इनमें क्या ऐसी क्या कमी रह जाती है कि मतलब वी जस्ट डोंट सी दैट एनर्जी, दैट फायर इन देम? देखें बात ये है कि एक तो उनको उस लेवल की हॉकी नहीं मिलती। पूरे साल में आप देखें कितने का आप इंटरनेशनल इवेंट्स खेलते हैं। एक उनको डाइट, और फिर दूसरा मैंने जो फील किया है ना, वो उनका वो फोकस नहीं है। जैसे मैं आज सुबह किसी से बात कर रहा था कि 94 का जब वर्ल्ड कप सिडनी में, नाश्ते के बाद शहबाज सीनियर ने किस जगह किस कमरे में रेस्ट किया शाम के फाइनल मैच के लिए, ये टीम मैनेजमेंट को भी नहीं पता। तो जब तक हमारा इस तरह के ख्यालात नहीं होंगे, मैं समझता हूँ बच्चे ठीक नहीं हो सकते। और दूसरा जो उनको डाइट और केयर चाहिए ना इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं हम दे पा रहे। हॉकी फेडरेशन बिल्कुल भी नहीं दे सकते। मतलब हम उस लेवल पे ही नहीं है अभी, हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, बिल्कुल नहीं है। जितना मर्जी शोर कर लें, वो जो खाना खाते हैं ना, उस खाने से वो कभी वर्ल्ड चैंपियन बन ही नहीं सकते। अभी तो बीच में तो हालात ऐसे हो गए थे, सुना था कि मतलब जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो डायरेक्टली आप लोगों को पैसा दे रहा था, उस पर वो सवालात उठते थे कि ये खाना क्यों दिया। और वहीद मेरी आपसे वहीद एक मेरी आपके प्रोग्राम में आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी होगी कि आपको मैं 30-35 साल से जानता हूँ, माशाल्लाह आपका जर्नलिज्म का, स्पोर्ट्स का बहुत वास्ट नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बड़ी ऑब्जर्वेशन जजमेंट है। आप किसी दिन जाके सिर्फ ये देखें कि अगर 20 दिन के लिए 40 लोगों का या 50 लोगों का ट्रेनिंग कैंप लगा है, उसमें खाने का बिल, फ्री अकोमोडेशन, उनके डेली अलाउंसेस और आने जाने का क्या 40 लाख बिल है या 50 लाख है या 60 लाख है, ये नोट करें और पाकिस्तान की आवाम को बताएं। अगर 10 दिन के लिए पाकिस्तान की टीम हॉलैंड जाती है, 10 दिन के लिए, अपनी मर्जी की टिकट की प्राइस करें, अपनी वो डेली अलाउंसेस लें, वहां का होटल जो ऑनलाइन पेमेंट होती है वो देखें और पाकिस्तान की आवाम को बताएं कि 2 करोड़ रुपए खर्चा होता है, 2.5 करोड़ होता है, ताकि सबको पता चले 40 लाख आया, 40 लाख आया तो उसके क्या प्राइस बॉन्ड तो नहीं लेके रख लिए। तो इस तरह रियलिटी भी पता लगनी चाहिए। ये जो आपने शब्द एक जो बात की वो बिल्कुल आई एग्री 200% विद दैट। और उसकी वो यही है कि जो हमारे बहुत सारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनका प्रॉब्लम यही है कि जब तक वो पीएचएफ में होता है, अभी नवीद आलम की मैं बात करूं, जब तक कि वो पीएचएफ में आप लोगों के साथ थे, डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, तो हम इतना कुछ नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब एकदम से सुनना शुरू कर दिया। और वही और प्लेयर्स का भी हाल है। ये एक बड़ा दिस हैज़ डैमेज्ड पाकिस्तान हॉकी अ लॉट। मतलब हमारे फॉर्मर एम्पियंस को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसके ऊपर। और बल्कि जब ये पैसों की भी बात चली थी कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, जब राना मुजाहिद सेक्रेटरी थे तो उस वक्त मेरा यही सवाल था कि भाई जब इतने सारे ओलंपियंस हैं तो अगर वो मतलब थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर लेते तो शायद ये हालत हमें नहीं देखनी पड़ती। बट एनीवे शहबाज, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया आज जी स्पोर्ट्स में। ये था नाज़रीन हमारा शो शहबाज अहमद के साथ, लेकिन जिस वक्त ये शो ख़त्म होगा तो 2018
ख़त्म होने को आ चुका होगा और बल्कि नया साल शुरू होने को होगा 2019 जो है, अब हम दाखिल हो रहे हैं 2019 में। तो एडवांस में आप सबको जो है नया साल मुबारक। और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से मैं बात करूं, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात करूं, हमारी दुआ है कि नया साल, क्योंकि इस साल 2019 में जो है वर्ल्ड कप भी, आईसीसी वर्ल्ड कप भी होना है और भी बड़े इवेंट्स होने हैं, तो हमारी दुआ है कि हमें पाकिस्तान को कामयाबी बहुत सारी हासिल हो, 2019 में हॉकी के हालात बेहतर हो और जो मुश्किलात हैं हमारे स्पोर्ट्स में और हमारे मुल्क में, वो सब जो है उनका कोई ना कोई हल निकल आए। तो अपना ख्याल कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। आपसे कल मुलाकात करेंगे लाइव शो में। अल्लाह हाफ़िज़।